Hey folks, welcome you all to the new video of Registration Wala, CA Komal Bansal this side. So today we are going to discuss on what is cosmetic registration and what are the different licenses or categories of cosmetic license. So first of all, I am going to give you a brief introduction on what is cosmetic and how it is growing exponentially in India. So basically you all know that cosmetic industry has been growing exponentially at a very accelerating rate in India. It's twice as fast as the European and the US markets. So currently the rate is 15 to 20% growth rate of cosmetic industry in India. So what are the main reasons why the cosmetic industry is growing such an accelerating rate? So first reason would be the desire of getting more and more attractive and beautiful, and the second reason would be the influence of the Western culture. Why there is a need to introduce this cosmetic license in India? What is the biggest major reason behind it? So the major reason was the introduction of the chemicals in these cosmetics, the chemicals used in this cosmetics. So that was the major concern behind the introduction of this cosmetic licenses. So the cosmetic license is governed by the three acts, that is the Drugs and Cosmetic Act 1940, Drugs and Cosmetic Rules 1945, and lastly the Cosmetic Rules 2020. So this was one of the major concerns of the government after the increasing rate of the use of cosmetics. So the manufacturing of the cosmetic is regulated by the state licensing authority that are set up by the state government, whereas the import of the cosmetic is regulated by the central licensing authority that is being set up by the central government. So what is cosmetic? I'm going to define the word cosmetic that has been defined under the Cosmetic Act 1940. So now I'm going to define you what is cosmetic. A cosmetic is any article intended to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed on or introduced into or otherwise applied to the human body or any part thereof for cleansing, beautifying, promoting attractiveness or altering the appearance. So basically अगर हम बात करें कॉस्मेटिक होता क्या है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आप अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए या उसकी अपीयरेंस चेंज करने के लिए, वो कॉस्मेटिक की डेफिनेशन में लाया गया है. जैसे कि काजल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, सोप, डिओड्रेंट्स, पाउडर्स, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो आप अपनी ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई करते हैं उसे कॉस्मेटिक की डेफिनेशन में कवर किया गया है. इवन टूथपेस्ट भी आज की डेट में कॉस्मेटिक के डेफिनेशन में कवर होता है. अब हम बात करेंगे कॉस्मेटिक में कौन कौन से लाइसेंस दिए जाते हैं. ब्रॉडली कॉस्मेटिक लाइसेंस दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहला है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस और दूसरा है इंपोर्ट लाइसेंस. मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस उन लोगों को दिया जाता है जो कि इंडिया में कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और जो किसी भी कॉस्मेटिक को या तो बना रहे हैं या किसी फॉर्म में उसको पैक कर रहे हैं या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट कॉस्मेटिक्स पर अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि एक फिनिश प्रोडक्ट कॉस्मेटिक निकल के आता है. नेक्स्ट है लोन लाइसेंस. लोन लाइसेंस उन लोगों के लिए है जिनके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नहीं है लेकिन वो फिर भी कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं दूसरे किसी मैन्युफैक्चरर की फैसिलिटी यूज करके जिसके पास ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है. सेकेंडली देयर इज एन इंपोर्ट लाइसेंस. इंपोर्ट लाइसेंस किस लिए होता है? अगर कोई आप ऐसा कॉस्मेटिक इंपोर्ट करना चाहते हैं जो कि इंडिया में नहीं बना है बल्कि किसी मैन्युफैक्चरिंग साइट जो कि फॉरेन में लोकेटेड है वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, ऐसा कोई भी कॉस्मेटिक अगर आप इंडिया में लाते हैं तो आपको इंपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत है. इंपोर्ट लाइसेंस बेसिकली आप तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहली कैटेगरी है अगर वो ऑलरेडी एक आप ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हैं जो कि जिसके लिए लाइसेंस ऑलरेडी ग्रांट कर दिया गया है. फॉर एग्जांपल एक मेबलिन की लिपस्टिक है जो कि पहले ही कोई इंपोर्टर इंडिया में ला चुका है और उसके लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड है, रजिस्ट्रेशन नंबर है उस पर्टिकुलर पर्सन के पास, और वो प्रोडक्ट आप दोबारा से इंडिया में लाना चाहते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट लाइसेंस होता है, इंपोर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड इन इंडिया. सेकेंड कैटेगरी होती है इंपोर्ट ऑफ एनी बल्क फॉर्मुलेशन दैट इज रेडी टू फिल. बेसिकली अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैं ले सकती हूँ नेल पॉलिशेस का. नेल पॉलिश का जो कंटेंट है आप किस कंटेनर में लाते हैं जो कि आप यहाँ लाके और पैक करते हैं और पैक करके और आगे सेल करते हैं, बट आप फाइनल प्रोडक्ट यहाँ नहीं ला रहे हैं. आप ला रहे हैं उसका जो सिर्फ कंटेंट होगा, अंदर की पॉलिश होगी, वो आप किसी कंटेनर में या ड्रम में ला रहे हैं
वो लाके देन आप यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट बना के उनको बॉटल्स में फिल करके और देन आप आगे सेल करते हैं, तो उस केस में इस लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। थर्ड कैटेगरी इसमें आ जाती है इंपोर्ट ऑफ एनी न्यू कॉस्मेटिक। न्यू कॉस्मेटिक अकॉर्डिंग टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट उसकी डेफिनेशन दी गई है, कोई भी ऐसा नया कॉस्मेटिक जिसके अंदर एक नोवल इंग्रेडिएंट हो जो कि आज तक कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में कभी भी किसी कॉस्मेटिक को बनाने में यूज ना किया गया हो, उसे कहेंगे हम इंपोर्ट ऑफ न्यू कॉस्मेटिक। अब इन तीनों लाइसेंसेस, इंपोर्ट के लाइसेंसेस को लेने के लिए आपको इंडिया में अप्लाई करना पड़ता है, उसके बिना आप इंपोर्ट नहीं कर सकते इन तीनों कैटेगरीज को। बट इसके लिए जो पावर दी गई है वो CDSCO पे दी गई है, जिसके पास कुछ फॉर्म्स, कुछ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स आप फाइल करते हैं, तब आप इन लाइसेंसेस को लेके और कोई भी कॉस्मेटिक इंडिया में ला सकते हैं। अब इनमें कौन से फॉर्म्स अप्लाई करने हैं, क्या रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको फाइल करनी है और कौन सी ऐसी फॉर्मेलिटीज है जो हमें पूरी करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट इस लाइसेंस को लाने के लिए, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि हम बहुत ही जल्द अपने चैनल पर टेलीकास्ट करेंगे। उसके लिए स्टे ट्यून्ड। पियानो लाइसेंस हो या ISP लाइसेंस, FCRA लाइसेंस हो या FFMC लाइसेंस, सच तो ये है दोस्तों कि इन लाइसेंस को पाना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको ऑल द टेक्निकल सपोर्ट्स की जरूरत है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन वाला आपकी मदद करेगा। अगर हमारे और वीडियोस को आप देखना चाहते हैं और हमारे ऑफर्स को आप और ध्यान से परखना चाहते हैं, तो हमारे और वीडियोस को देखिए and subscribe to our channel and click the notification bell. For any more information, please contact us through our comments. Thank you.